ऑरिजिन बैक विद यू। आज अपन करने जा रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के एग्जांपल के एक्सरसाइज 11.3। सो देखो, आप लोगों को इसका पता है कैसे एक्सरसाइज है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है तो थोड़े से टिपिकल होंगे, लेकिन क्या है ना कि बड़े आसान, कंसेप्ट बड़ा आसान है। चैप्टर में कुछ एक मात्र फॉर्मूले, एक दो फॉर्मूले तो उसी से रिलेटेड है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। The diameter of the circle whose area is equal to the sum of areas of two circles whose diameter are this. Now, तो अपन को पता है एरियाज के साथ अपन होता है, तो अपन ने एक्सरसाइज 1 याद करो, उसमें अपन ने सॉल्व किया था कि r is equals to r1 square plus r2 square का रूट। एरिया जब अपन को गिवन होता है, सर्कमफ्रेंस में r1 plus r2 होता है। सो डायमीटर 100 plus 24, that is 576, it gives me root of 676, which means it is 26 centimeter. Or if I talk about diameter, then my answer is 52 centimeter. Okay, let's move on to next one. So as I said, questions are really easy, but little bit of calculation is there and some trickiness as usual. So let's do this one. Find the area of sector. Okay, sector, what is sector? I explained you guys sector. This is a sector. It has angle 120 degree and 21. So area is equals to pi r square, that is 22 by 7 into 21 into 21 into 120 divided by 360 theta by angle. So this gives me 1 by 3 and this balances out this. So final answer is 21 into 22, which means 462 centimeter square. Let's move on to next one. What this question says is that we need to find out the area of shaded region and the radius of circle is 7.5. If radius of circle is 7.5, then the side of square is 15, its diameter. Now, okay, it's pretty simple. Area of shaded region is equals to 15 into 15, yani area of square minus area of circle. It's pretty simple. So pi r square, that is 7.5 whole square. तो ये आपके पास आएगा 225, and if you solve this, you will gonna get 176.625. So your final answer would be 48.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन मैंने, देखो सैंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप लोगों को खुद को करनी, यू नीड टू डू दिस। ओके, सो प्लीज गो एंड सॉल्व इट एंड रिवर्ट बैक। अगर नहीं आता है, टेलीग्राम ग्रुप, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप, you can join them. Now let's do this one. If area of sector of radius this is this, so radius is given, area is given, means 54 pi is equals to pi into 36 into 36. We have not angle, not given with angle. Pi से pi balance, 36 से balance 10. 6 times if we take this gonna give me 9 and 2 3 और ये हो गया यहाँ पे 5. तो थीटा आई एम गेटिंग 15 डिग्री। थीटा क्या आ रहा है मेरे पास? 15 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। L is equals to 2 pi r, 2 pi into 36 r into 15 by 360. So it is balancing 30, balances out this. So it will give me 12 and this will give 3. So my final answer will be 3 pi. Okay, let's move on to next one. First question of our exercise, the radius and circumference wala question hai. So capital R is gonna be 15 plus 18, which is 33 centimeter. Next, pretty simple, huh? Ab here square is inside the circle, so what will be the area of shaded region? Our answer is gonna be pi r square minus this area of square. I'll write square, and now diagonal is 8 centimeter,
इट इज 8 सेंटीमीटर। दिख नहीं रहा होगा लेकिन पॉइंटर से आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं क्या लिखा, कलर से नहीं दिखा होगा। 8 सेंटीमीटर डायगोनल। ओके, सो अगर डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी मेरे पास, 4 सेंटीमीटर। एंड a रूट 2 हो गया मेरे पास 8। सो फाइनली 8 मेरा होगा 4 रूट 2। तो अब फाइनल आंसर की बात करूं मैं अगर, तो 16 पाई a4 r4 है तो 4 का स्क्वायर 16 पाई माइनस 4 इंटू 4 रूट 2 यानी 16 इंटू 2 विच गिव मी 32। तो ये मेरा आंसर होगा। पाई में छोड़ दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर। पाई इज करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। जब तक आपको फाइनली मतलब नहीं बोला है ना, छोड़ सकते हो ऐसे आंसर, मत करो ज्यादा कैलकुलेट, ज्यादा मशक तो भाई ना करना, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस दिस एंड एंगल दिस, it is absolutely a very easy question. Okay, so pi into 28 into 28 into 45 by 360, pi को लिख लो 22 by 7, so it will give me 4 here, and this is 1 by 8, so it is gonna balance this, and here will be 11. My final answer will be 28 into 11. तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा 308 is my correct answer, 308 centimeter square. Next, okay, this one is little bit of tricky. By tricky means it's unusual concept which might confuse you guys, but as of a question reading, it is a 3-mark question, so it's an easy, okay, it is easy but little bit tricky. या समझोगे ढंग से तो होगा, नहीं अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ गलत हो जाएगा, समझे। द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो दैट इट हैज टू कीप द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। फॉर कन्वर्टिंग द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, व्हाट वी नीड टू डू इज मल्टीप्लाई दिस स्पीड बाय 5 by 18, then we will get the result in meter per second. So speed is equals to 66 into 5 by 18. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल सी चीज ये करो, क्योंकि 5 by 18 कैसे आया, किलोमीटर इज ऑफ किलोमीटर इंटू मीटर 1000, आर इंटू सेकेंड्स 3600. बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट 5 by 18, इससे मल्टीप्लाई कर देने का। सो आंसर अब अपना हो गया मीटर पर सेकेंड, इसमें मीटर पर सेकेंड। 18 से बैलेंस 933, एक और बार कर देते हैं, 3 नीचे रहेगा 11। सो स्पीड इज 55 by 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। रेडियस अपन को पता है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस कितनी, देखो स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस ट्रेवल यानी 2 pi r इंटू n रिवॉल्यूशंस डिवाइड बाय टाइम, तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो अपन को निकालना कितना है, how many revolutions, we need to find n, और speed अपन को है 55 by 3, it is given to us। 3 से balance it will give us 20, 2 से balance किया तो 10, and n is equals to 550 divided by 22 into 7, 22 by 7 का 7 ऊपर जाएगा और नीचे रहेगा r का 36, तो it is this, okay, 11 से balance हुआ तो 12, 50 and okay it is 35, so 70, तो n अपने पास आ गया फाइनली इज इक्वल्स टू 5। सो 5 रिवॉल्यूशंस लेने के बाद ये क्वेश्चन होगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरे को लगता है आप समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स डू दिस वन। इसमें कहा गया है कि ये देखो ये फील्ड है 20 मीटर इंटू 16 मीटर, 20 मीटर इंटू 16 मीटर की ये फील्ड है। यहां पे अपन ने बांधा है एक काऊ को 14 मीटर की रोप से, किससे, 14 मीटर की रोप से। तो 14 मीटर की रोप है तो ये पूरा यहां तक, ये 14 से 14 तक का रीजन वो काऊ कवर कर सकती है, यानी ग्रेस कर सकती है। वहां पे वो जो घास होगी उसको खा सकती है वहां पे, सिंपल भाषा में हिंदी में बोलूं तो। सो what we need to find is the area of the field which can cow graze. So this is the area in which cow can graze.
Angle is 90 degree because it's a rectangle. So area is equals to 22 by 7 into 14 into 14 pi r square, which is pi r square 90 by 360 angle. So it's 1 by 4, 2, 2, 7. So finally it is 22 into 7 meter square. तो फाइनल आंसर अपने पास आता है 154 मीटर स्क्वायर. फाइनल आंसर क्या आता है 154 मीटर स्क्वायर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. ओके दिस वन. ओके दिस माइट गोना बी ट्रिकी फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि ये देखो ये 38 यहाँ पर ही खत्म होगा 38. ठीक है, यहाँ तक है 38 and this is 10. So it is the diameter of this semicircle. डायमीटर है तो ये रेडियस होगी इसकी 5. रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर. तो टोटल एरिया, अब ध्यान से देखो, टोटल एरिया ऑफ सेमीसर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमीसर्कल यानी 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमीसर्कल, यानी एक सेमीसर्कल सेम है, दोनों को ऐड किया तो एक सर्कल बन गया. एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा ही आसान 38 into 10 प्लस एरिया ऑफ सेमीसर्कल यानी पाई आर स्क्वायर. आर है अपने पास 25. आर है अपने पास 5 तो आर स्क्वायर हो गया 25. सो फाइनल आंसर 25 पाई प्लस 380 सेंटीमीटर स्क्वायर. बड़ा ही आसान, बिल्कुल इजी. अब इस पाई को आप लोग सॉल्व कर सकते हो फर्दर, और आंसर मैं आपको बताऊं ऐसे भी छोड़ सकते हो. देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सॉल्यूशंस बुक में ऐसे ही छोड़ रखा है, अगर आप चाहो तो आप भी छोड़ सकते हो एंड इसको सॉल्व करना है, सॉल्व भी कर सकते हो. दैट्स नॉट एन बिग इशू. सॉल्विंग इज नॉट एन बिग इशू. इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट व्हिच वी नीड टू focus on. Yeah, let's do this one. ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइजेस में भी, मतलब almost maximum times you will get these types of question only in paper also and this also. So AB is not given to us. AB is diameter here. If it is AB is diameter, then angle C is 90 degree. As you all know that angle subtended in a semicircle is always 90 degree, right angle. AC we are given is 6 centimeter and AB it is given to us, it is 8 centimeter. BC sorry. So AB अपने पास आ जाएगा 10 centimeter. AB अपने पास आ जाएगा 10 centimeter. Area of shaded region is equals to 10 आ गया तो पाई 25 पाई. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर 5 है तो 25 माइनस पाई इंटू हाफ इंटू 6 इंटू 8. ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, which means 25 pi minus 24. Okay, this is something really good, and if you solve this you are gonna get 54.5 centimeter square. Next, now this one, this is also a good question. देखो इधर आपको दिया हुआ है ये ज्वाइन कर दो, सिंपल ज्वाइन दिस. दिस इज गिवन 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर आपका. सो दिस इज द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. रेडियस क्या हो गया आपके पास 2 सेंटीमीटर. ये विड्थ कितनी हो जाएगी 4 सेंटी और 4 सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर है. ओके ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा. तो एरिया कितना होगा, एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो एरिया हो जाएगा 8 into 4 प्लस पाई बाई 2 into r square which is 2 pi by 2 pi r square by 2. तो ये हो जाएगा 2 and it will give me 2 pi plus 32 मीटर स्क्वायर. ठीक है, बिल्कुल मतलब आसान था, सिंपल विजुअलाइज करना है और थोड़ा सा मेजरमेंट करना है, हो जाता है. नाउ दिस वन इज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी इफ यू कैन से, इफ यू वांट टू से दिस, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन. देखो ये 4 and this is whole is 12, so this final length will be also 4 मीटर. अब ये पूरी 4 मीटर है तो ये देखो ये डायगोनल से डायमीटर से सॉरी, तो रेडियस आपके पास हो जाएगी, फिर रेडियस हो जाएगी 2 मीटर. ठीक है, समझ में आया. नाउ आई कैन से ये 3 this 3, this whole from this point to this point 20 मीटर,
दिस विल बी, अगर 2 है तो 2 2 2 माइनस 4, तो 4 माइनस करा 20 में से, तो ये हो गया 16 मीटर। क्या हो गया? 16 मीटर। सो फाइनल एरिया क्या अपन अब बात करते हैं। फाइनल एरिया इज इक्वल्स टू 26 इंटू 12 बाहर के सर्कल का माइनस, अंदर डालो इसको, अब 16 इंटू 4 प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज 4। तो पाई आर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि दोनों तरफ क्या है यार, अभी पीछे क्वेश्चन में क्या, दोनों तरफ सेमी सर्कल है, एड अप होंगे सर्कल बनेगा, इसलिए तो ये हो गया अपने पास 4 पाई। माइंडेड। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। 26 इंटू 12 को 260 प्लस 52 और 2 1 3 3 1 2 माइनस 64 और माइनस 4 पाई, ये आपके पास होगा। तो ये आने वाला है आपके पास 248 माइनस 4 पाई मीटर स्क्वायर। 248 minus 4 pi meter square. Next, the area of minor segment of circle is this. माइनर सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट सेक्टर, सेगमेंट की बात है। तो यहाँ पे देखो सेगमेंट बनाते हैं, ये अपन ने थोड़ा सा रफली सर्कल बनाया, दिस इज अ सेगमेंट, और एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री ये है तो ये दोनों भी 60 डिग्री हो जाएंगे। तो और ये वाला एरिया, इसका अपन को एरिया निकालना है सेगमेंट का। रेडियस अपने पास है 4, सो 14, सॉरी माय मिस्टेक। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू 14 इंटू 60 डिवाइड बाय 360 माइनस रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4, रूट 3 बाय 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, so it's balancing 6 times। तो अब फाइनली आंसर देखते हैं पर, ये 4 को बैलेंस करेगा तो ये 7, ये हो जाएगा 7, और इसको मैं लिख देता हूँ 22/7, ये बैलेंस तो 2, दिस विल गिव बी 3, तो ये हो गया 22 इंटू 14 डिवाइड बाय 3 माइनस 49 रूट 3। तो इसको फाइनली अगर अपन आप सॉल्व करते तो ये अपने पास आएगा 280 प्लस 28 और 308 बाय 3 माइनस 49 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसी ही रहती है, और जो सेगमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी कैलकुलेशन 110% स्पेसिफिकली ऐसी ही होगी, ऐसी ही रहती है, क्योंकि इस चैप्टर के साथ ही ऐसा है कुछ सिलसिला, ये ऐसा ही चलता है इसमें, मतलब और एक गंदा आंसर आता है क्योंकि एक ट्राइंगल आ जाता है आपके पास और एक आता है आपके पास सेक्टर, तो दोनों का मिक्सअप जो होता है ना, उसका फाइनल रिजल्ट बहुत ही वियर्डो आता है। सो दिस इज इट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं अपन। इसमें अपन को स्पेसिफाई क्या हुआ है कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मिड पॉइंट्स है, तो रेडियस आपके पास होगी 6 सेंटीमीटर की। अब 4 क्वाड्रेंट है, एक सर्कल 4 क्वाड्रेंट से ही तो बनता है, तो सिंपल सा अगर अपन लॉजिक देखें, अब रेडियस अपन को पता चल गई है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 माइनस पाई आर स्क्वायर विच इज 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 36 पाई। अब देखो इसको मैं एक चीज से रिलेट कराना चाहूंगा आप लोगों को, कहां गया, नॉट दिस वन। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें आपका जो सर्कल है वो इस तरीके से है, शेडेड रीजन ये वाला है। अब मैं इनको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया और सर्कल्स को क्वाड्रेंट पे रख दिया है काट के, तो आपके पास रीजन जो मिलता है, आपको रीजन मिल जाता है फिर आपका ये वाला इस टाइप का, ऐसा पोर्शन रीजन मिलता है। तो रीजन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस डायग्राम और सिचुएशन अलग है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेना अगर इच्छा है, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो, अपन को एंगल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, माइंड रेस। θ1 बोल दिया इसको बोल दिया θ2, इसको बोल दिया θ3। साइड अपन को इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 10 है, तो रेडियस सबकी 5 हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। दिस वी नो। तो एरिया क्या होगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, θ1 बाय 360 प्लस पाई 25 पाई θ2 बाय 360 प्लस 25 पाई θ3 बाय 360। ठीक है, यहां से 25 पाई बाय 360 कॉमन, यह आता है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ट्राइंगल्स के एंगल है, ऑल आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये सारे एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको बैलेंस आउट करेगा ये 2 टाइम्स, so it is 25 pi by 2. Final answer is 39.25 centimeter square. Next, same, बस इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, बोला है रेडियस 14 है, तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई, पाई को लिख लो 22/7 क्योंकि 14 है, तो 14 इंटू 14 इंटू 180 बाई 360, ये हो गया 2। 14 एक बैलेंस हो गया आपके पास, 22 इंटू 40 विच मीन्स 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अ सर्कल Kulap Park is surrounded by a road of width 21 मीटर। ये सर्कुलर पार्क है, उसकी रेडियस है अपने पास 105 मीटर। इसके बाजू में रोड है और उसकी विड्थ है अपन के पास 21 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126 मीटर। वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस। तो इनर सर्कल माइनस आउटर सर्कल, प्रीटी सिंपल। एरिया इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 126 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर। ए प्लस बी वाला लगाएंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ही ट्रिकी हो जाएगी फिर, नहीं तो बिना उसके, इसीलिए 231, दिस विल गिव मी 3, तो 22 into 693, so my final answer would be 5246 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर अपन बहुत यूज करते हैं, तो मेरी आदत सेंटीमीटर की हो गई है, टंग स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सेम है, सेम जो ट्राइंगल में क्या वो यहाँ करना है, यहाँ पे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पे सिर्फ अपन को पाई आर स्क्वायर करना है। देखो मैं दिखा देता हूँ फिर भी आप लोगों को एक बार। पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बैलेंस बैलेंस। फाइनल आंसर 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये हो गया 3, and 22 into 63 which means 1386 centimeter, 1386 centimeter square. Okay, last question of our day, and hopefully this is it, and this is it. Okay, hopefully what, इधर अपन को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर a long wire. I'll just explain you guys by using this हेडफोन। मानो ये 20 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का वायर है, इसको मैंने फॉर्म करना है 60 डिग्री के आर्क में। मान लो एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंगल 60 डिग्री है। इसकी लेंथ बतानी है, रेडियस बताना है सिर्फ अपन को, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज रेडियस। तो 2 पाई आर इंटू 60 डिग्री है डिवाइड बाय 360 डिग्री, किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। ये लेंथ है, इसके बराबर होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा
6, ये हो गया आपके पास 3, रेडियस आ गया आपके पास 60/π सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गया आपके पास 60/π सेंटीमीटर। दैट्स इट गाइस, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी इशू है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। सारा आपको पता है, ये लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड करने का, तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओगे। एंड दैट्स इट गाइस, इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज शेयर करो यार, बताओ अपने दोस्तों को, अकेले अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, साथ में पढ़ना चाहिए, शेयर करो। एंड हिट दैट लाइक बटन फॉर मोर अपडेट्स। अभी चलता हूँ, टाटा बाय, सी हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।